Good evening, everyone. After the success of first installment of Startup Sunday, welcome back to another exhilarating episode to thrill your mind with a new startup journey. I am Arvind Dora, your moderator for today's evening. Visiting a doctor was a childhood nightmare for many, wasn't it? But slowly we grew up realizing the importance of healthcare in our lives, especially during COVID times. But reading what the doctor wrote in the prescription and keeping a record of it is a mess for many. You still have your 10 certificate, right? But how many of you have your prescription or last test report you visited a doctor? Why do we compromise our health so much? Well, soon this is going to be a thing of past as Team Medicos has brought you their smart digital solution for this problem and wants to revolutionize the healthcare sector. Please welcome Team Medicos and its founder, Mr. Sandeep Yadav, Mr. Saurav Samal, and Mr. P. Arya Prakash with their innovative startups. Thank you, Arvind. Thank you for the warm introduction. So, firstly, I would like to thank ECL for giving us this opportunity to present our startup and talk with these young minds. So, before starting, I would like to show you a small clip. So, that was a metaphorical representation how the Indian medical system is overburdened by the elements like the prescription and non-availability of medical records. But have you ever thought why does this actually happen? Like ऑब्वियसली हमें हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है ऐसा क्यों लाइक वाई हमेशा इंडिया में ऐसा हेल्थ का कंडीशन इतना पुअर है क्या लाइक हमारे डॉक्टर्स बहुत केयरलेसली ट्रीट करते हैं पेशेंट को ऑब्वियसली द आंसर इज अ बिग नो क्या डॉक्टर्स लाइक मतलब उन्हें मन नहीं लगता काम करने में अगेन दैट्स वेरी स्टूपिड व्हाई वुड दे चूज अ प्रोफेशन वेयर दे वोंट वांट टू वर्क but this all revolves around a data around a fact that is according to WHO like every country must have one doctor for 1000 people, but in case of India the situation is not bad but it is worse where we have one doctor for 11,000 people. So you can understand how the situation of Indian healthcare is so grievous. लाइक एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और उसके दरवाजे पे 200 और पेशेंट्स खड़े हैं. सो दैट सिचुएशन इज रियली वेरी डेंजरस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग टू यू आवर स्टार्टअप मेडिकोस. माइंड बहुत तेज चलता है. So sorry, like before that I would like to show you a clip we said that what are the problems, but let us hear it out from the doctors itself. Like we have with Dr. Rajiv Redkar. और अपना हाथ जो है ना इतना तेज नहीं चलता है जितना दिमाग तेज चलता है. okay. और जब भी दिमाग ज्यादा तेजी से चलता है और हाथ कम तेजी से चलता है तभी हाथ पे ध्यान उतना नहीं दिया जाता है. सो डॉक्टर्स को काफी रिपीटेटिव लिखना होता है. करेक्ट. सो पेशेंट के अभी ऑर्डर्स अभी 100 के ऊपर पेशेंट उसके हर रोज सेम ऑर्डर लिखने का. पहले 2 दिन तू अच्छा हैंड राइटिंग में लिखेगा. तीसरे चौथे दिन में वो खराब हो जाएगा ना हैंड राइटिंग. और ओपीडी की स्थिति ले लो कि सामने आपके बैठे 200 पेशेंट. उनको पेशेंट को देखेगा कि तू हैंड राइटिंग में कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा लिखेगा कि दवा देगा. 200 पेशेंट आपको 2 घंटे में अगर देखना होगा तो हैंड राइटिंग कैसे हो सकता है यार. वेल दैट्स ट्रू. लाइक कैसे 200 पेशेंट अगर 2 घंटे में देखना होगा तो कैसे देखेगा एक पर्सन. सो हम
हम तो लाइक पेशेंट का नंबर कम नहीं कर सकते, ना ही डॉक्टर्स बढ़ा सकते हैं, बट हम एक टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट सोल्यूशन दे सकते हैं. सो प्रेजेंटिंग टू यू Medicos, from disease to ease, always by your side. So introducing ourselves, like I am Sandeep Yadav, and I am accompanied by my fellow co-founders Saurav Samal and PRA Prakash. So obviously आपको ऐसा पहले Medicos सुनते ही लगता है Medicos है क्या? So let me tell you more about it. Like Medicos is an AI integrated healthcare platform that enables doctor to write digital prescription and eases the access of EHR for better treatment and future health alerts. कुछ समझ में नहीं आया, right? So like I would like to call Saurav to take us through the solution. Saurav? Thank you, Sandeep, and good evening, guys. Myself, Saurav Samal, co-founder of Medicos. So all of you might know by now that this problem isn't just restricted to medicals, right? This has made all its way to social media as well, in formats of memes and other forms of content. So let's look at some of them to lighten the situation a bit. ये दवाई देना तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्लियर तो लिखा हुआ है भैया, ये बहस मत करो, डॉक्टर से लिखवा के लाओ. ये दवाई देना, छोड़ू एक पता डिस्प्ले निकाल. So इससे देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेडिसिन वाले फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में कुछ सेटिंग है, या फिर फार्मासिस्ट को डॉक्टर के बुरे हैंडराइटिंग देखने का पूरा प्रैक्टिस हो गया है, राइट? अब राजू का बाप बेचारा क्या ही बोलेगा उसका प्रीवियस हेल्थ कंडीशन. सो इससे देखकर तो ऐसा so as you all might have noticed by now कि the real problem in Indian medical system is a lack of time. एक पेशेंट को अंदर ट्रीट करोगे एंड बाहर 200 और वेट कर रहे हैं. Lack of time restricts doctor to write in bad handwriting, and that leads to much more severe consequences. Let me give you an example. Doctor usually prescribe an antibiotic rifampin to the patients who suffer from tuberculosis. But if the patient has diabetes, this medicine is just not for them. But इस जगह if the doctor doesn't know कि patient को diabetes है and he prescribes them the medicine, the consequences can be severe. And that's why we need health records. So now that we have understood why we need medical reports, so we should now try to solve the problem. इसका solution क्या हो सकता है? Number 1, increasing the number of doctors. The answer is obvious no, right? Number 2, decreasing the number of patients. This too sounds stupid. But if there was a way to somehow reduce the consultation time for each patient, will that help? The answer is yes. So answer is yes. Now you might be wondering कि ये engineer के बच्चे what are they trying to do in the medical sector? Engineer का काम ही तो होता है to make lives easier, right? That's exactly what we do at Medicos. Medicos is an app-based solution to all these problems. So we made things easy for doctor by giving them a digital prescription and test report template जहाँ पे वो e-prescription लिख सकते हैं. Everyone here might have heard about DigiLocker, right? It's an app by Indian government where you can store your documents, birth certificate से लेकर ड्राइविंग सर्टिफिकेट तक, रेसिडेंस सर्टिफिकेट से लेकर 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट तक, वहाँ पर एवरीथिंग स्टोर कर सकते हो, राइट? जस्ट लाइक दैट एवरीवन कैन स्टोर देयर मेडिकल हिस्ट्री, प्रेस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स एंड टेस्ट रिपोर्ट्स इन आवर ऐप. The next time you visit a doctor, the doctor will know everything starting from your previous diseases to prescribed medicines and all your allergies as well. That will help them in giving you the perfect cure for your ailment. And then writing prescription will for him will be just a click away, right? So and then तो is a template खोला and medicine type किया, and that will be sent to your app easily, and you can show it to your pharmacist. It will help you maintain a record, get medicines in time, and also help the next doctor that you are visiting to give you the perfect cure. So let's now jump into a quick overview of our app, like how it looks like. Yeah. So our app is actually made of two types, one for doctors and one for the users. Both the sides are tied together and work simultaneously. Either patient doctor के door को entry किया, उधर doctor knows everything about the patient. Either doctor prescription send किया, उधर patient के app पर वो notification में store हो गया. इधर टेस्ट रिपोर्ट भेजा एंड उधर यूजर साइड में वो हेल्थ रिकॉर्ड टाइप स्टोर हो गया. एंड एट लास्ट इधर डॉक्टर का काम खत्म हुआ, उधर पेशेंट कैन पे एज वेल. So let's first take a look into the user side.
Once users logs into his account, the account will look something like this. Here he can check his health record, वो लास्ट को कौन सा डॉक्टर के पास गया था एंड उसका प्रेस्क्रिप्शन जो कि अभी फॉलो करना है, उसका टेस्ट रिपोर्ट्स लास्ट टाइम जो डॉक्टर के पास गया था वो भी यहाँ पे चेक कर सकता है, एंड ऑल द डॉक्टर के पास जो गया था उसका बिल्स, उसका प्रेस्क्रिप्शन, एवरीथिंग ही कैन चेक राइट हियर, एंड यू कैन सी हियर द QR कोड, राइट. What will it help? I will tell you later. And this is a reminder for when the doctor sets a prescription. He writes कि ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, कि लंच के बाद लेना है, तो यहाँ पे वो एज अ रिमाइंडर स्टोर हो जाता है. You can also add medicines here. So let's jump into the doctor part. अभी डॉक्टर में अभी मैंने दिखाया कि आपको यूजर साइड में QR स्कैन करने का होता है, एंड दिस इज द QR कोड दैट द यूजर इज गोइंग टू स्कैन. वंस मिस्टर P.R.A. प्रकाश हॉस्पिटल गए, तो ये डॉक्टर के साइड वाले में QR कोड को ये स्कैन करते हैं, तो डॉक्टर के पास आ जाता है कि मिस्टर P.R.A. प्रकाश हैज विजिटेड योर डॉक्टर, विजिटेड यू, एंड यहाँ पे वो डॉक्टर कैन नो एवरीथिंग अबाउट P.R.A. प्रकाश, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हेल्थ रिकॉर्ड टू प्रेस्क्रिप्शन दैट ही इज फॉलोइंग, हिज टेस्ट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद उसको पता चल जाता है कि इसका एलर्जीज क्या है, एवरीथिंग सब कुछ उसको पता चल जाता है, एंड उसके बाद वो परफेक्ट मेडिसिन लिख सकता है यहाँ पर. तो यहाँ पे वो प्रेस्क्रिप्शन लिखा, and everything that he writes will be stored as a electronic health record in Arya Prakash app. So in Arya Prakash app, so ये जो भी मेडिसिन लिखता है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप पे स्टोर हो जाता है. My bad. Okay. Okay. So now that we have understood how our app works, you might have a question कि will the doctors even use this? जो doctors 20-30 years से paper prescription पर practice कर रहे हैं, will they directly switch to digitalization and use our app? And who are we to answer this, right? Let's hear it from the doctors themselves. वेल हम लोग का डाटा तो कुछ और ही कहता है कि हम लोग बहुत सारे डॉक्टर को विजिट किए और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे, लाइक विल दे बी कंफर्टेबल टू राइट प्रेस्क्रिप्शन इन मोबाइल rather than paper. So 75% of the doctors said yes, they will write in the phone or tab itself. But 25% we got not exactly negative, but they said maybe we can use it because they are old enough to use the mobile phone. और ऐसे भी जो लोग फोन यूज नहीं कर पाते हैं उसके लिए क्या ही कर सकते हैं. और भी क्वेश्चंस पूछे उन लोगों को कि व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट राइटिंग पेपर प्रेस्क्रिप्शन. जैसे कि संदीप पहले वीडियो दिखा चुका है आप लोगों को कि जैसे बार बार लिखने से पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम बार बार लिखने से एक तो हेजिटेट हो जाता है डॉक्टर, और बार बार कितना अच्छे से सुंदर से लिखेगा तो उसका हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली खराब हो ही जाता है. और क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट आस्किंग ए पेशेंट अबाउट their previous records, and they answered that sometimes patients hide about their previous information, and many of patients don't exactly remember what have happened earlier to them. And from these research we have found that our product is market fit and the real problem we are going to solve. एंड दिस इज आवर मेडिकोस का टाइमलाइन है ये. और जो जून 2021 में हम लोग ये आइडिया फाउंड किए थे एंड ब्रेनस्टॉर्म किए थे, और फिर एक महीने के बाद हम लोग को हम लोगों में से किसी को भी डेवलपमेंट नहीं आता था, फिर भी हम लोग अपने से खुद से ट्राई करके खुद सीख के फिर वेबसाइट होस्ट किए. और फिर हम लोग उस टाइम में कंप्लीट में थे कि एक्चुअली आइडिया वैलिडेट है कि नहीं, मार्केट फिट है कि नहीं. इसलिए हम लोग एक महीना बीच में घबरा गए थे. फिर क्या हुआ कि डिफरेंट कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट किए, फिर वहाँ से हम लोग मार्केट भी एनालिसिस किए, फिर वहाँ से हम लोग का आइडिया का वैलिडेशन मिला और लगा कि हाँ मार्केट फिट है. फिर हम लोग जो सितंबर का महीना था वहाँ पे हम लोग हमारा MVP का स्टार्ट किए थे. MVP होता है मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो कि एक एंड्रॉयड ऐप था जिसमें डॉक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन डिजिटली सर्व कर सकता है. जो कि पहले मेरे को जावा आता था तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में इसको बनाना शुरू किया. फिर इसको कंप्लीट भी किया, 2-3 महीना लगा, फिर इसको कंप्लीट भी किया. बट हम लोग एट लास्ट ऐसा लगा कि
कर तो रहे हैं जावा में, बट उसका कुछ फ्यूचर नहीं है। फिर हम लोग जी वो ये जो जनवरी महीना था उसमें, नहीं सॉरी, जो उसके बाद का भूल गया मैं। तो एमवीपी बनाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग डॉक्टर के पास गए और आपको ट्राई करने बोले। तो डॉक्टर कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी दिए, आप कुछ थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए फीडबैक भी दिए। तो बहुत सारे डॉक्टर के साथ हम लोग का कनेक्शन बना। फिर जो जनवरी का महीना था उसमें फिर हम लोग सोचे कि ये नई लैंग्वेज थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो हम लोग जो लैंग्वेज था जावा हमारा था, तो उसको चेंज करके कॉटलिन को स्विच किया अभी। तो जो जनवरी से जो मार्च महीना है उसमें हम लोग स्क्रैच से फिर से बनाएंगे, और इस विथ बेटर यूआई। And in these 2 to 3 months we will try to make the app stronger, and we will test in the month of March again with the doctors, and finally in the month of June we will launch the whole product, both user side and the doctor side. It will be like not like just it is the end of everything, but we have planned something big. Not like they are going to type word by word, and anything you have shown by a QR code itself, and I think you have enjoyed it. एंड सम अदर फीचर भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि टैब में हो गया डिजिटल पेन से डॉक्टर लिख सकता है। अपने कंफर्ट के हिसाब से डॉक्टर लोगों को हम लोग की जो स्पेसिफिकेशन है वो सब प्रोवाइड करेंगे। सो मीट आवर टीम, एक स्टार्टअप में टीम सबसे बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, ये मेरे को नहीं पता, जो लोग स्टार्टअप किए होंगे उन लोगों को तो पता होगा। बट टीम एक ऐसा चीज है जो स्टार्टअप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम तीनों को छोड़ के बाकी 4 जन अभी हम लोग से जुड़े हैं। तो पहला है आदर्श कुमार गोस्वामी, हु इज आवर ग्राफिक डिजाइनर एंड एंड्रॉइड डेवलपर, and then Sagar Raj Gantayat, who develops our website, and then Rajat Kumar Naik, who is our AI and ML developer, and Khalid Chusma, who is our backend Android developer. And we are now a strong team by 7 members, five of which are technical and 2 of others. So thank you from hearing us. Thank you, Vishal. Thank you, Arya. Like we all understand, like all the members of STAT and everybody understand that what is the importance of team in any startup. So moving further, like what kept us going was 2 things. Like first was our team, and the second one was some of the achievements that we collected throughout our journey from in the last 6 to 7 months. So like starting on, we were actually the semi-finalist in Chunauti 2.0. Like Chunauti is a online program startup, like seed funding program conducted by STPI, which is Startup Technological Park of India. So in this competition we got a chance to pitch in front of investors, and we actually ended up in the semi-final round. And then in the recent last month in January, we were actually a part of Together 2022. We were in the top 100 startups from India. Like in this was a great program. It was a 1 week long program where we had a chance to connect with a lot of speakers like Vinita Singh. You might have seen her in Shark Tank. She's the CEO of Sugar Cosmetics. We had also some eminent speakers like Shivangi Jain, and also the co-founder of Urban Company, Aviraj Singh Bhal. So there were a lot of mentors from both the sides, like Canada and also India. Here we discussed about our like a business model. We connected with some tech experts from Canada, and we also got a chance to pitch our idea in front of investors. Like this was a great that week long was a great learning experience, and surely it was nice. Then next we actually made it to the Zartov fellowship, and this was we didn't join in this Zartov, but it was a great way to validate our idea. Then moving further, like about Ayushman Bharat digital mission, like everybody understand that health एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ लाइक सिटीजन्स के लिए नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं, एक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट है। सो ABDM एक ऐसा मतलब फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें वो
लाइक 3 चीजें ऑफर करता है। एक होता है ABHA नंबर, दैट इज लाइक यूनिक हेल्थ आईडी होगा हर एक पर्सन के लिए इंडिया में। तो इस आईडी का हर एक मतलब लाइक प्राइवेट सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इसे यूज कर सके अपने अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके अपना प्रोडक्ट को बेटर बना सकता है। लाइक हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, क्योंकि हमें पता है कि हम डॉक्टर्स को डायरेक्टली ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, सो वी नीड टू वेरीफाई देम। लाइक हमें उनका सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। सो हम लोग अगर फिजिकली उन्हें करने लगे, उनके सर्टिफिकेट्स को चेक करने लगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर हम ये फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क को, सो वी कैन एक्चुअली डू इट इन लाइक सेकेंड्स। लाइक हम उनका API इंटीग्रेट करके अपना सारा उनका मतलब डॉक्टर्स का डेटा को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास एक और है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि लाइक इंडिया के जो सारे हेल्थ केयर फैसिलिटी उनका उनका डेटा वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये टोटल जो फ्रेमवर्क बना है ना AVDM, तो it will be like a great booster for us or like many other health tech startups, like they can use a lot of data. So like moving further, that is like हमें पता है like हम एक young like as young entrepreneurs, like we aspire to become work towards the betterment of health in the country. हमें पता है कि like हमारे country में health infrastructure बहुत poor है, तो अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि हमारा मतलब एक ग्लोबल हमारा एक लाइक नेशनल एम है कि हम आने वाले समय में लाइक वी डोंट वांट टू हैव एनी डेथ्स बिकॉज ऑफ प्रिवेंट किया जा सकता है, लाइक जिसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स और मतलब जिस ट्रांसक्रिप्शन एरर जो सिली एरर्स के वजह से कोई भी डेथ ना हो, ये हमारा एम है। और and that's it, I guess. Thank you all for joining with us. Like this was last 30 minutes was great to connect with talk to you, like share our journey. Like you can see the website and email, you can anytime you can contact with us. So that's it, Arvind. Now we are open to questions. So now you can ask your questions by raising your hands or typing in the chat box. Okay, someone questioned that why you changed language from Java to Kotlin. Okay, it is not my personal work, it is a teamwork. So as mass student goes with the Kotlin, so and no one is caring about the Kotlin. So sorry, Java. So we now decided to switch to the Kotlin because it is a massive language. So like Someone has- yes, Saurabh, you can go ahead. So someone has asked, is Medicus app available in the Play Store or iOS? So not until now, but as we saw the timeline, we'll be launching it soon during the June after the testing time. So we'll be testing first with the doctors, and then we'll be launching it in the Play Store and iOS store. So stay tuned. Like it would be better if you open your mics and ask questions. We have 2 person, Subhranshu Sahu, you can go. Yes, you can unmute yourself and speak. Good evening, Bhaiya. I have Yes. doubt that when you are just starting up from scratch, just as the founder of someone is a founder who has an idea of startup and he needs to start his startup very soon. So he needs a team for the technological things like development of app, website, and everything extras. He can choose the co-founder, and how he would be able to choose the whole team. You need a whole team, or you can go through your skills. Like he doesn't have any technical skills like app development or website development. Then what Yeah, you do? I get your question. Like देखो when you have a startup, like तुम्हें एक problem है जिसको तुम्हें solve करना है, तो the most important thing is like you have that bunch of people who can actually put their effort to solve that. So तुम्हें एक technical team चाहिए होगा, कुछ और different types of मतलब member चाहिए होगा team में, तो you have to actually interact with people. Like eCell is also a great platform जहाँ तुम connect कर सकते हो बहुत सारे people के साथ। फिर LinkedIn भी है, तुम वहां पर भी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती। अगर तुम्हारा आइडियाज लाइक मैच होता है, तुम लोग एक ही पेज पे आ सकते हो, you are feeling the same way the other person is feeling, then you can connect, you can talk to him like, yeah, let's get together, let's solve this problem which is affecting a lot of people.
So it's all about like getting to different platforms where you can connect with people, and अगर आप लोगों के साथ connect करोगे तो they will always be like open to like take you in the new journey of start. Yeah. So बहुत सारे questions आ रहे हैं like, और anybody? Yes. Okay, I want Shreyas? the question of Ashish Kumar Patro. He asked that what is the most difficult part in startup, finding the unique idea of startup or implementing in reality. I want to simplify the answer that only idea and implementing in reality. That is enough. Not unique idea, only idea and implementing in reality. Yeah, Shreyas, you can unmute and ask the question. गुड इवनिंग भैया। Good मुझे evening. पूछना था कि पहले ही ऑलरेडी ऐप स्टोर में कुछ ऐसे ऐप्स है लाइक प्रैक्टो और एमफाइन और अपोलो 24/7 जिसमें ऐसे ही फीचर्स कुछ दिए हुए हैं। Exactly. तो Okay. आपका जो ऐप है तो उसमें ऐसा क्या आप टारगेट रखे हैं जो इनसे पे अच्छा होगा? लाइक Exactly. पीपल, व्हाई विल पीपल प्रीफर दिस ओवर अदर एप्स? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल, लाइक ऐसा समझना है तुमको कि लाइक एक मार्केट स्पेस होता है ना। तो अभी एक बोट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बोट जो कंपनी था, 5 साल पहले जब बोट आया मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी स्पीकर्स बनाते थे, JBL हो गया, फिर एप्पल बनाता था, मतलब लाइक बहुत सारे, सैमसंग बनाता था, लाइक एन नंबर ऑफ कंपनीज बनाते थे। लेकिन फिर भी बोट मार्केट में एंटर किया क्योंकि उसने कुछ यूनिक USP था उसका कुछ। तो हमारा ही वैसा USP है, जैसे कि USP होता है, मतलब जिसको नहीं पता, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। लाइक अगर आपके मार्केट स्पेस में बहुत सारे प्लेयर्स है तो आप उनसे क्या डिफरेंट कर रहे हो ताकि लोग आपको प्रीफर करें। तो मार्केट में जितना भी सोल्यूशन है ना, जितना भी हेल्थ टेक है ना, वो यूजर साइड के लिए है, लाइक पेशेंट्स के लिए है। प्रैक्टो पेशेंट्स को घर बैठे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा रहा है, वीडियो कॉलिंग। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखोगे पावर पॉइंट, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो मोर फ्रॉम द डॉक्टर साइड है। लाइक हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एम्पावर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। सो ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग है, दोनों अलग अलग चीज हो गया। एक हो गया यूजर साइड, एक हो गया मतलब हेल्थ केयर का, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का साइड है। तो हम लोग जो एक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साइड में एक्ट कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें एम्पावर कर सके, ताकि जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। आई होप दिस इज क्लियर। यस भैया। भाई हाँ भाई when we get an idea तो तापरे हमको दरकार था कि is it valid for the market, माने से यूजर टा जो अछंती मार्केट रे तांको ठार सर्वे नेबाको पड़िबो जे सेमाने यूज करिवे ना करिवेनी कि आमे खाली भाबुछु। तो से जो सर्वे प्रोसेस ता थिला ताको केमती स्मूथली करा जाय पारिबो। देखो एग्जैक्ट टू बी ऑनेस्ट, लाइक जेतबेले तमे गोटे प्रॉब्लम टा फेस करलो ना, तो नेक्स्ट स्टेप होउची तमे कस्टमर सहित कनेक्ट करियो। माने यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर समबडी। लाइक आमे गोटे प्रोडक्ट टा बिल्ड करछु डॉक्टर्स माने के, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स गोटे एस्पेक्ट होचन से प्रोडक्ट। तो डॉक्टर जेतबेले से प्रोडक्ट को माने आमे यूज करियो, आमे आगे डॉक्टर से जाईकी कथा हबा आपनकर प्रॉब्लम टा कोन होची। लाइक एई जो टोटल जो अच्छी हमर हेल्थ रा जो चैनल टा अछि तादरे मेन सो ब्लॉकेजेस कोड अछि, कोड हमें टाइम टा को एक्स्ट्रा रिड्यूस कर परिया, कोन माने गोटे बेटर सॉल्यूशन हबा आपनकर एई प्रॉब्लम पई। सो फर्स्ट स्टेप होची कनेक्ट करिया डॉक्टर सर। तमे बजला कि केमिति हमें कनेक्ट करिया, तो डिपेंड करे तमरो माने कस्टमर किए। द सबटु टफेस्ट जे होचन कस्टमर होतन डॉक्टर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माने वेरी पैक रोचन तांगर माने तांको ता भितरे हमें जाईकी तांको से कथा ही गैस पेलु, ताले मते लागु छी कि आउ जहाँ भी तमरो माने कस्टमर सेगमेंट थे तमे आराम से जाई कथा ही पारे, बिकॉज़ डॉक्टर्स ही होचन गोटे एमतिया लोक जो माने सबटु बिजी थांती। तो जदि तमर किछि आइडिया अछि तार कि पोटेंशियल कस्टमर छंती, तमे जाओ तांको से कथा हो फ्रीली, वो माने तांकर प्रॉब्लम टा जानिया को चेष्टा करो, देन प्रपोज अ सॉल्यूशन। थैंक यू भाई। Okay, Dev Shruti Chinmay is Vishwa. asking, is this app free for use? So like for users it will be free, but this is more on the business model side, which we can discuss later on. Like you can connect with us later on, we can discuss about it. भैया वो आपके प्रेजेंटेशन में लिखा था कि AI प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या फॉलो करेगा, डिजीज फॉलो करेगा, डिजीज से क्या आउटकम्स आएगा मेडिसिन लेने से।
वो कैसे मतलब इंटीग्रेट कर पाए आप मतलब मेडिकल फील्ड से? तो जिस बंदे ने अभी हमसे पूछा था यूनिकनेस क्या है ना, तो जो तुमने बोला ना यही यूनिकनेस है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज यूनिक इन, अगर इस सेक्टर में भी अगर कोई हमारे सेक्टर मतलब इस डॉक्टर एंड में कोई घुसता है ना, तो ये हमारा जो यूनिक पॉइंट है। अच्छा, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, सपोज निमोनिया से डायग्नोस करता है, तो वो कुछ मेडिकेशन लिखता है ना कि लाइक ये ले लो, ये ले लो, ये टेस्ट कर लो। तो लेट से जब आपको सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स हुआ, कुछ सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स हुआ, तो एक 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 पैटर्न बनता है ना। तो कुछ लाइक एक साल का सपोज आपका डेटा है, आपका हेल्थ डेटा है, तो उसको हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि लाइक आपका डिजीज होने का रिस्क कितना है, लाइक फ्यूचर में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो सके, डिजीज होने का रिस्क कम हो सके, मतलब इल होने का रिस्क कम हो सके। तो वो एक फ्रेमवर्क है जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो लाइक अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो यू कैन कनेक्ट अस, वी कैन डिस्कस इट लेटर। ओके भैया, थैंक यू। Karan, you can ask. So here Devjyoti has asked, you are going to launch only Medicos app or website so that doctors or users can access anywhere. So ये बहुत ही जगह में होने वाला है, like not only app, we'll also be making the website for them so that doctors can use it on their PCs as well. हम खाली मोबाइल तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम पीसी को एक्सटेंड करेंगे। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि विल बी लॉन्चिंग सम टैब्स, और जहाँ पे वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे वो पेपर पे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड एज अ डिजिटली रिटन प्रिस्क्रिप्शन। सो स्टे ट्यून्ड, वो सब आगे होने वाला है। भाई प्रथमे एप्लिकेशन टा कहीं चूज करले, एंड्रॉइड ऐप टा कहीं चूज करले, माने लाइक गुटे मोबाइल रे से लिमिटेड नंबर ऑफ मोबाइल एप्लिकेशंस रखिबो, हेले वेबसाइट रे हमें कितरा विजिट करि परिबा आराम से। तो फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लिकेशन रे ही कहीं स्विच करले, वेबसाइट। सब डॉक्टर पाखे तो पीसी नथिबो ना, समस्ते केबे को डॉक्टर को विजिट करछ जे पीसी धरि के बसथिबे। हां, We are trying to solve the problem with the easiest way. Exactly. से ପ୍ଲାନ୍ସ କିଛିଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅବିକା ତ ସେୟାର କରି ହବନି, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ଟ ଅସ୍, ଆମେ ପରେ କଥା ହେଇପାରିବା ତା ବିଷୟରେ। थैंक यू भाई। Any more questions? Arvind, I can see one more. Actually, it is the best app ever I used. Still today, I was remained user of the app and thank you. Okay, so if anybody has any, ऐप कहाँ से यूज कर लिया? मैं भी सोच रहा था। बीटा टेस्टर। So I have one question from Somendra, where we actually see that for the same symptoms we have got many diseases like fever symptoms in the respiratory enough. So actually सोमेंद्र, इसका कंसेप्ट ऐसा है कि हम लोग ऐसा नहीं प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपको सिम्टम्स हुआ, आपको ये XYZ डिजीज है। हम लोग ये कहते हैं कि आपका पास्ट में ये डिजीज है, तो यू मतलब आपको रिस्क है, रिस्क ऑफ गेटिंग इल।
तो उस रिस्क से आपको बचने के लिए क्या चीज चाहिए वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको फीवर हुआ हम बोल देंगे कोरोना है, ऐसा नहीं है। हम हाँ लोग कैसे, अगर ठीक, आपको फीवर देखो हुआ है बोल सकते हैं कि यस देयर इज अ चांसेस ऑफ यू कैन हैव कोरोना, बट हम लोग ऐसा कभी भी कंफर्म करके नहीं बोलेंगे। आपका फीवर और आपका मेडिसिन लेके डॉक्टर आपको क्या क्या मेडिसिन दिया है उसको लेके हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। आपको कौन सा फीवर हुआ है, मतलब पास्ट में कौन सा फीवर हुआ था, ये सब जो मेडिसिन के हिसाब से और आपका सिम्टम्स को लेके करेंगे लोग। हाँ वो तो पेमेंट का तो ऑप्शन है, चिन्मय, बट क्यूआर कोड जो है ना, वो क्यूआर कोड और पेमेंट वो अलग ही हो जाता है, तो इसलिए हम लोग राजर पे का यूज करेंगे पेमेंट के लिए। और क्यूआर कोड जो है वो हमारे हेल्थ का जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंटीग्रेट रहेगा, या इट इज सो लाइक प्लानिंग क्यूआर जो टू। तुम बोल रहे हो ना, एक सेकंड, अरे जो तुम क्यूआर कोड बोल रहे हो, जैसे अपन क्या करते हैं हर जगह तुम देख रहे हो कि क्यूआर कोड यूज हो रहा है पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ताकि टाइम बच सके। डॉक्टर के लाइक डोर पे वो होगा क्यूआर कोड, आप जाके स्कैन करो तो डॉक्टर को पता चल जाएगा यार ये पेशेंट लाइन अप हो चुका है, तो वो फिर उसका नेम डिटेल्स वगैरह सब आ जाएगा। तो आपको फिर वो एक मतलब पूरा प्रोसेस से बच जाओगे कि ना, आप जाओगे फिर डॉक्टर को बोलोगे मेरा नाम क्या है ना, ये है, फिर एज, फिर मेल, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं पर डॉक्टर आपको जाके हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर लेगा, फिर आपसे वो पूछेगा भी नहीं कि भाई तेरा पहले डायबिटीज है, शुगर है, एलर्जी है, ब्लड प्रेशर है, वो जस्ट जाते ही देख लेगा और फिर प्रेस्क्राइब करेगा आपको करंट कंडीशन के हिसाब से। इसमें कुछ एआई वगैरह यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है एआई, आर्य। हाँ हाँ बिल्कुल, मशीन लर्निंग तो यूज होगा ही जब वो टैब राइटिंग वाला सिस्टम आएगा। और जो वो पूछा है कोई कि भाई वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करी हो फॉर द डॉक्टर साइड, ऑब्वियसली जिसके मन में ये वाला प्रॉब्लम आएगा ना उसके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन आएगा कि भाई वॉइस असिस्टेंट इंट्रोड्यूस करो इसमें। तो उससे भी बढ़िया है कि जो हैंड राइटिंग वो डॉक्टर के लिए कंफर्टेबल होगा कि जो काफी समझ सकते हो हैंड टू टेक्स्ट जो कन्वर्सन पार्ट तो आर्य तो माइक। सो व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इनकम थ्रू दिस ऐप? सोर्स ऑफ इनकम अभी तो यूजर साइड के लिए फ्री रहेगा, एंड संदीप जैसे बोला कि ये थोड़ा बिजनेस मॉडल के अंडर जाता है, तो वी कैन डिस्कस इट लेटर। भैया आपने फंडिंग लिया है क्या? नॉट रियली, जो भी हमने अभी तुमको अचीवमेंट वगैरह दिखाया ना, तो वो सब हम फंडिंग के लिए ही गए थे। वो लास्ट में जैसे सेमीफाइनल में जाते थे या फिर टॉप 6 में नहीं जा पाते थे तो थोड़ा सा में रह जाते थे। वो जितने भी कंपटीशन थे वो सब फंडिंग के लिए हम गए थे। Yes, Shubham, you can ask. Yeah, my doubt is that this Medicos member have any idea for the rural people who don't know how to use smartphones or digital technologies. As Sandeep Bhai has said that there will be QR code. Through that only the doctor will get that patient's detail. But but in today's date, if 90 years old, or for example not 90 years, for example if a 75 years or any old senior citizen, if coming and he or she wanted to know her details, then how she or he will get that I actually want. Yeah, that was like a great question, like बहुत ही सही क्वेश्चन है तुम्हारा। इसका आंसर ऐसा है कुछ कि देखो अपन क्यूआर कोड लगा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि अपन ये भी सोच रहे हैं कि मान लो जिसके पास मतलब वो छोटा वाला फोन है ना, डजंट हैव अ स्मार्टफोन, तो उसके लिए भी कुछ Yeah, yeah. सोल्यूशन होना। एग्जैक्टली हाँ, तो उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि अभी कोविन का पोर्टल तुमने देखा हो, कोविन का पोर्टल, उसमें क्या होता है कि मतलब जो वैक्सीनेटर होता है ना उसके पास भी एक होता है, राइट होता है कि वो खुद से भी रजिस्टर कर सकता है किसी भी बंदे को, और उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कोविन के पोर्टल पे ऑलरेडी शो हो जाता है। एग्जैक्टली सेम होगा, मान लो कि क्यूआर कोड से नहीं किसी के पास नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएगा, जो इससे यूजुअल प्रोसीजर होता है। देखो हम समझते हैं कि 70% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है इस कंट्री के अंदर, ठीक है, और तो मैक्सिमम जो लोग आएंगे वो तो स्कैन कर लेंगे, लेकिन
बाई चांस कोई आता है जिसके पास नहीं है वो अपॉर्चुनिटी, तो वो डॉक्टर्स उसको जैसे मैनुअली फिलअप करेगा नेम वगैरह, और उसका फोन नंबर में वो डिटेल स्टोर होके ले जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो फोन नंबर ही बोल देगा, तो फोन नंबर से उसका सारा नेम एंड ऑल डिटेल्स वो हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो वो उनके लिए भी मतलब बेनिफिशियल इन द सेंस कि जब फ्यूचर में उनके पास कभी स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन नहीं भी होता है तो वो जाके अपना हेल्थ रिकॉर्ड तो एटलीस्ट उनका डिजिटली स्टोर होके रहेगा। समझ रहे हो? Okay, So I would like to okay, add something. Yeah. Yeah, go ahead. yeah. The Sandeep bhai has told that phone number. I would like some. I suggest idea if rather than will be there will be a rather than other than phone number, if there will be a Aadhaar card number, because many people don't have phone also. If we'll take the average, it may be less than 20% or 10%. But that 10%, 10% people or 20% people don't have the phone number also. But the identity number they have. If through that they can access, it will be more easier, because for an old lady he can't recognize, he can't remember her phone number through, as today's generation is going that number. But he or she can show her Aadhaar card or something, PAN card or extra Okay, or I any other. got your problem. See, have you know about UPI? Yeah. यूपीआई में क्या होता है कि यूनिक आईडी, सबका यूनिक आईडी होता है कि नहीं, और वो एक फोन नंबर में हाँ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। हाँ वैसे ही होगा, एक यूनिक आईडी होगा जो कि कनेक्ट होगा किसमें, फोन नंबर से कनेक्ट होगा, और वो फोन नंबर अच्छा को डॉक्टर इजीली एक्सेस कर सकता है। समझा? ओके हाँ, यूपीआई की तरह इससे समझो कि एक यूपीआई यूनिक आईडी होगा जिसमें कि फोन नंबर कनेक्ट होगा। फोन नंबर क्यों कनेक्ट करें? क्योंकि ये इजीली यूजर को थोड़ी याद रहेगा हाँ कि एक्सेस उसका आईडी हाँ कितना डिफिकल्ट होगा, उसको याद नहीं हाँ रहेगा ना, इसलिए हाँ उसको हम फोन नंबर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और डॉक्टर साइड में भी उसको भी इजी हो जाएगा वो यूजर को ट्रीट करने के लिए, और यूजर को भी याद रखने के लिए ठीक हो जाएगा, मतलब ओके अच्छा लगेगा। थैंक यू गॉट सो यहाँ पे सौम्य रंजन विश्वाल ने पूछा है कि व्हाट अबाउट प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। तो मैं जब भी यूआई दिखा रहा था ना, तो आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर एक्सेस करता है पेशेंट का ईएचआर, तो पेशेंट को एक ओटीपी जाता है, और वो ओटीपी जब वो डॉक्टर को बताएगा उसके बाद ही डॉक्टर कैन एक्सेस द ईएचआर ऑफ द पेशेंट। सो आपका जो भी एलर्जीज है वगैरह वगैरह, वो सब ईएचआर में स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में स्टोर होता है, जो कि ओनली द ओटीपी जो कि आपके फोन को आएगा उससे ही ओपन हो सकता है। तो प्राइवेसी गारंटीड है। Someone is asking about marketing. Like to be precise, what kind of like question क्या, थोड़ा पढ़ देना। भैया मार्केटिंग कैसे करोगे, ऑनलाइन या डॉक्टर्स की क्लिनिक में या ऑफलाइन? सो इसका इसका एक्चुअली मार्केटिंग तो किया जाता है, बट इसका एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ा वाला है। तो आपको पता होगा एमआरस होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या करते हैं, कंपनीज और जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स के बीच का वो लोग लिंक होते हैं। तो अपन का कनेक्शन से कुछ एमआरस के साथ, तो वो पाइपलाइन में वंस हम एंटर करेंगे ना, तो डॉक्टर्स को एक मतलब लाइक इन हैंड एक्सपीरियंस आएगा। मतलब वो ऐप को यूज कर सकते हैं, उनका मतलब हमारा एक पाइपलाइन में, हम पाइपलाइन में अगर एक बार घुसते हैं ना, तो डॉक्टर्स हमारा ऐप यूज करेंगे। उनके साथ हमारा कांस्टेंट कनेक्ट भी बन चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। हम उनसे कांस्टेंट फीडबैक ले रहे हैं, मतलब हम उनसे बात करते हैं कभी कभी, फिर अपना प्रोग्रेस भी उन्हें बताते हैं। तो उनका उनका एक इन जनरल पर्सपेक्टिव है कि यस द लाइक द प्रॉब्लम जिस पे हम काम कर रहे हैं बहुत मतलब सही है, मतलब हाँ वो प्रॉब्लम है मार्केट में, और लाइक इसको सॉल्व करने की नेसेसिटी है। तो ये एक जनरल वहां से फीडबैक है। बट मार्केटिंग तो हो ही जाएगा उसमें उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? भैया आगे का क्या प्लान है इम्प्रूवमेंट के लिए? आगे का क्या? हाँ, आगे का जो अभी आगे का तो प्लान वही है कि लॉन्च करना है। लॉन्च से पहले सब डॉक्टर्स का फीडबैक लेना है, उसके बाद लॉन्च करेंगे। और लॉन्च के बाद सारे डॉक्टर्स का जो फीडबैक होता है, यूआई में चेंजेस होता है सब कुछ धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे। एंड उसके बाद बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे। सो या Any more questions, guys? You can ask now. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टेस्ट सेंटर वाला भी एक ऐप आएगा जिसमें कि
कानवा आप लोग तो यूज किए होंगे, पता होगा कि सारे टेम्पलेट्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कानवा में। वैसे ही सारे टेस्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट रहेगा, जो ऐप होगा या फिर वेबसाइट होगा, वेब ऐप होगा, उसमें सारे चीज़ का टेम्पलेट रहेगा। आप लोगों को बस वो टेम्पलेट यूज करना है, और जैसे फॉर्म की तरह जो कानवा में जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाए हैं, तो सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करना है, बस वैसे ही जो अमाउंट है उसको ऐड करना है, बस ये छोटा छोटा चेंजेस करने से टेस्ट रिपोर्ट निकल आएगा। ठीक है, ये एक बड़ा चीज़ है जो हम फ्यूचर में करेंगे, और ट्राई करेंगे डॉक्टर लोग को टैब में लाने के लिए। Another question, what would be the source of income through this app? तो पहले भी बता चुके हैं कि ये थोड़ा बिजनेस साइड में है, हम लोग बात कर सकते हैं, ये आप तो सैड ग्रुप में हुई हो, वी कैन डिस्कस इट पर्सनली, ठीक है। Like Okay. if anybody has any questions, or we can wrap it up, like it's around 6, we can wrap it up. Okay, with this we will wind up today's session of Startup Sunday. Hope you enjoyed it. See you next Sunday with another startup with another interesting story. Till then, take care everyone.